हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एंटरटेनमेंट क्लब में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ. Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are met by bringing things from other places. Goods and services do not move from supply locals to demand locals on their own. The movement of these goods and services from their supply locations to demand locations necessitates the need for transport. Some people are engaged in facilitating these movements. These are known to be traders who make the products come to the consumers by transportation. Thus, the place of development of a country depend upon the production of goods and services as well as their movement over space. Therefore, efficient means of transport are prerequisites for fast development. Movement of these goods and services can be over three important domains of our earth, that is land, water and air. Based on this, transport can also be classified into land, water and air transport. For a long time, trade and transport were restricted to a limited space. With the development in science and technology, the area of influence of trade and transport expanded far and wide. Today, the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport. Transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system. Therefore, transport, communication and trade are complementary to each other. Today, India is a well linked with rest of the world despite its vast size, diversity and linguistic and socio-cultural plurality. Railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, cinema, and internet, etc., have been contributing to its socio economic progress in many ways. The traders from local to international levels have added to the vitality of its economy. It has enriched our life and added sustainability to growing amenities and facilities for the comforts of life. In this chapter, you will see how modern means of transport and communication serve as lifelines of our nation and its modern economy. It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national, and global trade of today. Hi Dipanjali. How do means of transport and communication play an important role in the economic development of the country? Explain. Actually ये क्वेश्चन जो है चैप्टर के लास्ट पार्ट से है, लेकिन सीबीएसई 2014 में ये क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन करके ये क्वेश्चन आया था, तो मतलब कम से कम हमें 5 to 6 पॉइंट्स इसमें लिखने थे. नो प्रॉब्लम, हम प्रिपेयर कर लेंगे. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर. तो पहली बात तो ट्रांसपोर्ट होता क्या होता है ट्रांसपोर्ट? आई नो शीन, व्हाट अ प्रीटी नेम. ट्रांसपोर्ट होता है बच्चा मूवमेंट. किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विसेज का जब आप सप्लाई करते हो डिमांड लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक सप्लाई करते हो तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. मतलब जहां पे डिमांड है वहां पे जब आप सप्लाई करते हो गुड्स और सर्विसेज को उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैम की बात करते हैं. मेरे को जैम्स बहुत पसंद है तो मैं जैम्स का एग्जांपल देती हूँ हमेशा. मान लो जैम बन रहा है हिमाचल प्रदेश. अभी मैं तो बैठी हूँ बैंगलोर में, मुझे जैम चाहिए बैंगलोर में. तो जैम जो हिमाचल की वादियों से बैंगलोर तक आएगा वो क्या है? वो तो ट्रांसपोर्टेशन है, राइट? ट्रांसपोर्टेशन को करते हैं ट्रेडर्स. तो पीपल एंगेज इन फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट, दे मेक प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन. Hence, the production of goods and services as well as their movement over space determines the development of the country. तो अगर एक कंट्री में गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं मुस्कान? आकांक्षा, अगर तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से हमने क्या सीखा है कि ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का. तो इन शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन जहां का जितना ज्यादा होता है उससे हमें एक फेयर पिक्चर मिल जाती है कि कंट्री कितना डेवलपमेंट कर रहा है. आगे चलते हैं भाई. मूवमेंट कितनी तरीके का होता है?
मूवमेंट कितने तरीके का होता है? मूवमेंट 3 तरीके का हो सकता है, लैंड के ऊपर हो सकता है, वाटर में हो सकता है या एयर में हो सकता है। एक एक करके करते हैं, पहले ये याद कर, लैंड, वाटर, एयर, राइट। लैंड पे कौन कौन सा होता है? लैंड पे होता है रोडवेज। बता, ये जो स्लाइड दे रही है ना, इस पे अभी आएगा क्विज क्वेश्चन, देखो हिंट भी दे रही हूं मैं, इसको अच्छे से याद करेंगे। तो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है रोडवेज मतलब हमारी सड़कें, रेलवेज मतलब हमारी मालगाड़ी, रेलगाड़ी, राइट, एंड पाइपलाइन। तो ये तीनों आते हैं आपके लैंड ट्रांसपोर्ट में। वाटर ट्रांसपोर्ट में भी हमारे पास दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है इनलैंड, एक होता है आपका ओवरसी। इनलैंड का मतलब है, मान लो कंट्री, एलपी देखा है सबने? एलपी नहीं देखा तो सबने नहीं होगा, लेकिन एलपी में क्या है कि अपने शहर के अंदर ही चैनल्स बने हुए हैं जिसमें आप नाव लेके ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर आप अपनी कंट्री में ही ट्रैवल कर रहे हो वाटर के थ्रू तो उसे इनलैंड ट्रैवल बोल दोगे। लेकिन अगर अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो वाटर के थ्रू, मतलब जो क्रूज व्रूज पे जाते हैं ना लोग, तो उसे आप ओवरसीज ट्रैवल बोल दोगे। तो ओवरसीज का मतलब दूसरी कंट्री तक ट्रैवल, इनलैंड का मतलब अपनी कंट्री में ही ट्रैवल। ठीक है, आगे चलते। हाय अनुष्का, हाय प्राजक्ता। डोमेस्टिक होता है और इंटरनेशनल होता है। तो डोमेस्टिक होता है जो कंट्री के अंदर होता है, मतलब मैं बैंगलोर से दिल्ली जाऊं, दिल्ली से बैंगलोर जाऊं, दिल्ली से असम जाऊं, ये सब कुछ डोमेस्टिक एयरवे है। लेकिन मैं दिल्ली से सिंगापुर जाऊं या बैंगलोर से कनाडा जाऊं, ये तो इंटरनेशनल है। जब आप कंट्री चेंज कर रहे हो तो इंटरनेशनल एयरवेज, जब आप कंट्री के बीच में ही ट्रैवल कर रहे हो, हवा में ट्रैवल कर रहे हो, एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो दैट इज डोमेस्टिक। अभी डोमेस्टिक भी दो तरीके के होते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग, प्राइवेट अंडरटेकिंग। पब्लिक बोले तो मतलब गवर्नमेंट ओन्ड अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ओन्ड एयरवे की बात कर रहे हैं। प्राइवेट एयरलाइन का मतलब हम प्राइवेट इंडिविजुअल ओन्ड एयरवेज की बात कर रहे हैं, राइट। ओनरशिप के बेसिस पे है ये, ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्ट भी हो गया डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक एंड प्राइवेट। आगे चलते हैं। Transport, communication and trade are complementary to each other due to development in science and technology. Of course, ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन अलग चलता है और कम्युनिकेशन और ट्रेड अलग चलता है। भाई ट्रेड तो होगी तब ना, पैसे तो तभी आएंगे तो प्रोडक्ट्स मार्केट तक पहुंचेंगे और मार्केट से कंज्यूमर के घर में पहुंचेंगे। तो अगर सड़क ही नहीं होगी तो मार्केट जाओगे कैसे, राइट। तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एकदम बेस्ट फ्रेंड्स है और इसी के साथ आपका कम्युनिकेशन भी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि अगर चिट्ठी भेजी है तो चिट्ठी जाएगी कैसे? कुछ ना कुछ तो लेके, कोई ना कोई तो लेके जाएगा, या तो सड़क पे या तो ट्रेन में, राइट। तो ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट आर ऑल थ्री बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे गो हैंड इन हैंड। और वो तीनों जब काम करते हैं तो कंट्री का डेवलपमेंट तो निश्चित है। चमका कि नहीं चमका? एक मनस्विनी network of transport and communication is a prerequisite for local, national, and global trade for today. एक ही बात को घुमा घुमा के एनसीईआरटी में 5-6 बार लिखा हुआ है। कहने का वही मतलब है कि ट्रेड नहीं होगी लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, जब हमारा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो, अमेजोन से ऑर्डर करते हो, कोई कॉल करके बोलता है ना कि डिलीवरी पार्टनर हैज रीच्ड योर लोकेलिटी, राइट। तो कम्युनिकेशन और डिलीवरी हो रही है आपके ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो दोनों हाथों हाथ ही जाते हैं बच्चा पार्टी, राइट। Next, before we go on, let me give you a quiz question for all the children who are watching the session. 400 of Here the question is, the people who make the products come to consumers by transportation are called traders. Let's move on. Transport and then roadways. Transport. Roadways. India has one of the largest road networks in the world. Aggregating to about 56 lakh kilometer. In India, roadways have preceded railways. They still have an edge over railways in view of the each case with which they can be built and maintained. The growing importance of road transport vis-a-vis rail transport is rooted in the following reasons. A. Construction cost of road is much lower than that of railway lines. B.
Roads can traverse comparatively more dissected and undulating topography. C. Roads can negotiate higher gradients of slope and such can traverse mountains such as the Himalayas. D. Road transport is economical in transportation of few persons and relatively smaller amount of goods over short distances. E. It also provides door-to-door services. Thus, the cost of loading and unloading is much lower. F. Road transport is also used as a feeder to other modes of transport, such as they provide a link between railway stations, air, and sea ports. In India, roads are classified in the following six classes according to their capacity. Look at the map of National Highway and find out about the significant role played by these roads. Golden Quadrilateral Superhighway, National Highway, State Highways, District Roads, Other Roads, and Border Roads. These are the six classes according to their capacity. So let's begin by Golden Quadrilateral Superhighways. The government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai, and Delhi by six-line superhighways. The north-south corridors linking Srinagar, Jammu and Kashmir, and Kanyakumari, Tamil Nadu, and east-west corridor connecting Silchar, Assam, and Porbandar, Gujarat, are part of this project. The major objective of these superhighways is to reduce the time and distance between the mega cities of India. These highway projects are being implemented by National Highway Authority of India NHAI. One mark question. Second, national highways. National highways link extreme parts of the country. These are primarily the road systems and are laid and maintained by Central Public Works Department CPWD. One mark question. A number of major national highways run in north, south, and east-west directions. The historical Sher Shah Suri Marg is called National Highway Number 1 between Delhi and Amritsar. Figure 7.2. Ahmedabad Vadodara Expressway. Find out places linked by National Highway 2 and 3. State highways. Roads linking a state capital with different district headquarters are known as state highways. These roads are constructed and maintained by State Public Works Department PWD. One mark question in state and territories. District highway roads. These roads connect the district headquarters with other places of the district. These roads are maintained by the Zilla Parishad. Other roads. Rural roads, which link rural areas and villages with towns, are classified under this category. These roads receive special impetus under the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. Under this scheme, special provisions are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all-season motorable road. Border roads. Apart from these, border roads organization, a government of India undertaking constructs and maintains roads in the bordering areas of the country. This organization was established in 1960 for the development of the roads of strategic importance in the northern and northeastern border areas. These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these areas. Hilly tracts, traffic on northeastern border road, Arunachal Pradesh. Roads can also be classified on the basis of type of material used for their construction, such as metalled and unmetalled roads. Metal roads may be made of cement, concrete, or even bitumen of coal. Therefore, these roads are all weather roads. Unmetalled roads go out of use in the rainy season. ट्रांसपोर्ट पर आ रही हूँ। अभी हमने शुरू कर दिया भाई फुल ऑन ट्रांसपोर्ट। रोडवे से हमने शुरू किया। रोड
जहां जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा वहां वहां मैं अभी आपको मार्क करा दूंगी, अभी इसी क्लास में मार्क करा दूंगी, ठीक है। तो रोडवे इज इंडियाज लार्जेस्ट, आई मीन इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। ऑब्वियसली 7th नंबर पे हमारी कंट्री आती है इन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इतना बड़ा कंट्री है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो रोड नेटवर्क तो होना जरूरी है। कुल मिला के अगर देखा जाए ना तो 56 लाख किलोमीटर से ऊपर हमारे पास सड़कें हैं। बोले मैम इससे ज्यादा तो पॉटहोल्स है। हाँ वो तो है, अभी वो तो सच है, लेकिन 56 किलोमीटर, लाख किलोमीटर सड़कें है यार। तो मतलब मुझे पता भी नहीं, अगर मैं सीधा एक सड़क बनाऊं 56 लाख किलोमीटर की, शायद आई विल बी ऑन मून। आई डोंट नो एनीबडी हु नोज दैट मच ऑफ डिस्टेंस इन साइंस, लेट मी नो। Anyway, so in India, roadways have preceded the railways, मतलब रेलवेज से काफी आगे चला गया है। और क्यों ना जाए, रोडवेज के बड़े फायदे हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बच्चा, क्वेश्चन जो आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज, और एक क्वेश्चन आ सकता है हाउ इज ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के हैं बच्चा पार्टी। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज एंड हाउ इज रोडवेज बेटर देन रेलवे। अभी जो मैं आंसर बता रही हूँ ये दोनों ही क्वेश्चन में चलेगा। पॉइंट नंबर 1, इजी टू बिल्ड एंड मेंटेन। बड़ी जल्दी बन जाती है यार, बड़ी जल्दी बन जाती है, सस्ते में बन जाती है और बड़ी इजीली बन जाती है। मेंटेन करना भी इजी है। कोई पॉटहोल आया, पॉटहोल को भर दो। ट्रेन की पटरी टूट गई तो भाई ट्रेन की पटरी बनाने के लिए तो कितना टाइम लग जाएगा, कितना लेबर लग जाएगा। लेकिन रोड तो है, इजी टू बिल्ड है, इजी टू मेंटेन है, एंड दैट इज वन एज दैट दे हैव ओवर द रेलवे। आगे बात करते हैं, लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एज कंपेयर टू रेलवे। रेलवे तो कितनी महंगी पड़ती है, सच अ स्नॉबी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले पटरी बनाओगे, फिर रेल के डब्बे बनाओगे, फिर आप उसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट लगाओगे। बहुत महंगा पड़ता है यार, बहुत महंगा पड़ता है रेलवे। लेकिन हमारा रोडवेज बहुत ही सस्ता पड़ता है, लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे काम हो जाता है एज कंपेयर टू रेलवे। थर्ड पॉइंट, roads can traverse comparatively more dissected and undulating topography. Topography क्या होता है? Topography होता है distribution of natural resources in a place, right? Extra knowledge not needed here. Undulating क्या होता है? Undulating होता है ऊपर नीचे। तो अगर पहाड़ों की बात करो या किसी भी ऐसे रास्ते की बात करो जहाँ ऊपर नीचे आपको जाना पड़ता है, तो उस undulating टोपोग्राफी पे ट्रेन बनाना तो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। लेकिन रोडवे बनाना कंपैरेटिवली क्या है? इजियर टास्क है। चमका कि नहीं चमका? सर्वे negotiate higher gradients of slope as such can traverse mountains such as Himalayas। अरे वही बात है यार, पहाड़ों पे रोड बनाना फिर भी इजी है। आपने देखा होगा अगर हिमाचल जाना है तो कालका तक जाती है रेलवे, उसके बाद रेलवे नहीं जा रही होती है, राइट? उसके बाद आपको रोड ही लेनी पड़ती है। और जितना स्टीप होता जाता है माउंटेन, उतना मुश्किल होता जाता है बच्चा रेलवे बनाना। पहाड़ों को काटना इतना आसान नहीं है, बहुत लेबर जाता है, वर्थ इट नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन रोड बनाना वहां पे फिर भी कंपैरेटिवली इजी पड़ता है। तो रोड यार बड़ी लो मेंटेनेंस ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, economical in transportation for few people, relatively smaller amount of goods over short distances। अगर 2-3 लोगों को जाना है, साइकिल उठाओ, एक जने को जाना है साइकिल उठाओ, सड़क पकड़ो और निकल लो। 2 लोगों को जाना है साइकिल पे भी जा सकते हो, स्कूटर पे भी जा सकते हो। 3 लोगों को जाना है रिक्शा पे भी जा सकते हो। 4 लोगों को जाना है कार में जा सकते हो। तो बेसिकली अगर कम लोगों को जाना है तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बेस्ट रहता है, बिल्कुल सस्ते में काम हो जाता है। साइकिल लेके निकल लियो तो कोई पैसे नहीं लगते, है ना? कोई भी पैसे नहीं लगते, तो बेस्ट है। लोअर कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन is also used as a feeder to other modes of transport। feeder का मतलब होता है खाना खिलाता है। ये रोड ट्रांसपोर्ट बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को खाना खिलाता है। अभी इसका क्या मतलब है? मान लो आपको जाना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने, अब आपको पकड़नी है ट्रेन, राइट? ट्रेन तो पकड़नी है, लेकिन रेलवे स्टेशन तक पहुंचा कैसे जाए? एरोप्लेन ले ले क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
हेलीकॉप्टर ले ले क्या? नहीं यार, फिजिबल नहीं है। तो फिर क्या लें? ऑब्वियसली सड़क लोगे ना। तो किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को आपको यूज करना है, एयरवे, वाटरवे, उसके लिए आपको रोड का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। रेलवे स्टेशन जाना है, सड़क लगेगी। एयरपोर्ट जाना है, सड़क लगेगी। राइट, दोस्त के घर जाना है, सड़क लगेगी। तो सड़क क्या हो जाती है, रोड क्या हो जाती है? फीडर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो these are some of the points बच्चा that you have to remember। एडवांटेजेस की फॉर्म में भी आ सकता है, रेलवे के ऊपर एडवांटेज की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड्स। आई श्रेया, तो हमारी गड्ढे में इतनी सारी रोड है, 56 लाख हमने पढ़ा किलोमीटर की रोड, सड़कें ही सड़कें हैं। तो ऑब्वियसली सड़कों का डिवीजन तो करना पड़ेगा। क्लास में 100 से ऊपर बच्चे हो जाते हैं, हम सेक्शन बना देते हैं। तो ऑब्वियसली इतनी सारी सड़कें हैं तो डिवाइड करना तो बनता है, राइट। तो हमारी अगर सड़कों को देखा जाए तो कुछ 5-6 तरीके से हम करते हैं डिवाइड। पहला तरीका है गोल्डन कोऑर्डिनेटर। अभी नाम में ही चमक है यार, नाम में गोल्डन, कुछ तो बहुत भयानक चीज है, कुछ तो बहुत स्पेशल कोऑर्डिनेटर की बात हो रही है। और कोऑर्डिनेटर क्या होता है? एक ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होती है। देखो इतनी मैथ तो मुझे भी आती है। 4 साइड्स वाले शेप को हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। गोल्डन कोऑर्डिनेटर का मतलब है इसकी 4 साइड्स होगी। अभी इतना तो हमें चमक गया। साथ में लिखा है सुपर हाईवे, और स्पेशल है, एक तो गोल्डन, ऊपर से सुपर हाईवे, राइट। सेकेंड इज योर नेशनल हाईवे, थर्ड इज योर स्टेट हाईवे। ऋषिका, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इस हफ्ते मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स, थैंक यू अमोक, एंड बॉर्डर रोड्स। डोंट वरी, एक एक करके पढ़ेंगे सारे, और सबके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अभी बता दूंगी। गोल्डन कोऑर्डिनेटर पे चलते हैं। तो गोल्डन कोऑर्डिनेटर, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही सुनहरा सा कोऑर्डिनेटर है। 4 साइड्स होती हैं इसके और 2 कॉरिडोर है। जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। पहले हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी है इंडिया की। फिर उसे चमका कि यार दिल्ली, कलकत्ता, कलकत्ता बोले तो कोलकाता लिख के आएंगे, जस्ट मैम कॉल्स इट कलकत्ता, ओके। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, ये 4 तो काफी इंपॉर्टेंट है, मेट्रो सिटीज है। इनको जरा कनेक्ट कर देते हैं, इनको कनेक्ट कर देते हैं। किसी को दिल्ली से कोलकाता जाना हो, सोचने की जरूरत ना पड़े, राइट। किसी से कलकत्ता को चेन्नई जाना हो, सोचने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो ये कॉरिडोर बनाया गया था, ये कोऑर्डिनेटर बनाया था हमारी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करते हुए। 6 लेन सुपर हाईवे है भैया, बहुत चौड़ा 6 लेन सुपर हाईवे, एक साथ जा सकती है 2-3 गाड़ियां, राइट। और इतना बड़ा सा ये जो हाईवे है, सुपर हाईवे, इसके 2 कॉरिडोर भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये स्क्वायर बना दिया, कोऑर्डिनेटर बना दिया तो काम चल गया। हमारे 2 कॉरिडोर भी हैं। मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आपको चमक जाएगा। रुको, पेन का कलर कर लेते हैं चेंज। श्रीनगर से कन्याकुमारी एंड योर सिलचर से पोरबंदर, राइट। श्रीनगर है जम्मू एंड कश्मीर में, कन्याकुमारी है आपका एकदम साउथ में, पोरबंदर है आपका एक्सट्रीम वेस्ट में बोले तो गुजरात में, और आपका सिलचर है आपका एक्सट्रीम ईस्ट में बोले तो आपका असम में। तो इन सारी जगहों को करता है कनेक्ट, और श्रीनगर से कन्याकुमारी वाले को बोलते हो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और सिलचर से पोरबंदर वाले को क्या बोलते हो? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। कॉरिडोर क्यों? एक गली जैसा बना हुआ है ना, एकदम स्ट्रेट सा, देखो जरा। Important 1 mark questions. ऑब्जेक्टिव बनाने का हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था बच्चा कि ये सिटीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनके बीच का हम टाइम को करना चाहते थे रिड्यूस, साथ हम इनके बीच के डिस्टेंस को भी करना चाहते थे रिड्यूस। आप बोलो कि मैम डिस्टेंस कैसे रिड्यूस हुआ? अरे यार पहले ना थोड़ा घूम के जाना पड़ता था, दिल्ली से कोलकाता जाना है या कोलकाता से आपको कन्याकुमारी जाना है तो थोड़ा घूम के जाना पड़ता था। अरे घूमने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक स्टेट हाईवे बना दिया आपने 4 सिटीज को कनेक्ट करता हुआ, जिसका नाम है गोल्डन कोऑर्डिनेटर। तो डिस्टेंस भी थोड़ा कम हो गया, और तो और आपका टाइम भी हो गया रिड्यूस, राइट। और इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट चमकता हुआ हाईवे है, कौन करेगा इसका कंस्ट्रक्शन और कौन करेगा इसका मेंटेनेंस? मेंटेनेंस करेगा नेशनल अथॉरिटी। देखा होगा ना, कई जगह आपने पढ़ा होगा NHAI, क्या मतलब होता है? जहां पे भी बच्चा एब्रीविएशन देखते हैं कृति, और जहां पे भी हम N देखते हैं उसे तो हम चुपचाप लिख देते हैं नेशनल। कॉमन सेंस होती है, देखो एब्रीविएशन इज नथिंग बट कॉमन सेंस, नो रट्टाफिकेशन इन इट, ठीक है। N फॉर नेशनल, चैप्टर का नाम है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, रोडवे टॉपिक पढ़ रहे हैं तो H से क्या होगा? H से होगा काउंसिल, कमिटी, नहीं, A से क्या होगा? A से होगा अथॉरिटी,
और आई से क्या होगा, कहाँ की अथॉरिटी, इंडिया का अथॉरिटी। तो NHAI का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद हो गया अरविंद, याद हुआ कि नहीं चिन्मय? यस, हाय सानिया। We will continue national highways from our next video. If you like the video, please subscribe to the channel, hit the like button and enjoy watching videos. Thank you.